Hello friends, how are you? I hope that you all will be fine. So today we will start a new chapter of chemistry, chapter 2, and the name of the chapter is acids, base and salts. On the basis of chemical properties, compounds are classified as acids, bases and salts. You know, every substance has different chemical properties and on the basis of these properties they are classified into acids, base and salts, which is indicated by indicators. Indicators, what is the meaning of indicator here? इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनसे हमें ये पता लगे कि जो गिवन सॉल्यूशन है वेदर इट इज़ एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट. सो इंडिकेटर की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज़ पुट इनटू एसिड और बेस. इंडिकेटर एक डाई होती है जो क्या करती है, अगर हम उसको एसिड में डालेंगे तो हमें अलग कलर देगी और अगर बेस में डालेंगे तो अलग कलर देगी. यानी कि एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एसिड और बेस. एन इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड और बेस एंड दस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस. इससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि जो हमारा चेंज होगा कलर के अंदर वो हमें बताएगा कि अगर इंडिकेटर का कलर चेंज होता है तो उससे हमें पता लग जाएगा कि ये एसिडिक है या बेसिक है. इंडिकेटर्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सेकंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर्स एग्जांपल रेड कैबेज लीव्स, turmeric, colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia and geranium. And synthetic indicators example phenolphthalein and methyl orange solution. So here is a table. यहाँ पर indicators लिखे हुए हमने color in neutral solution, color in acid, color in base. यानी कि जो ये अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन में अपना कैसा कैसा कलर देंगे. फॉर एग्जांपल इफ़ वी गिव एसिडिक सॉल्यूशन दे शो डिफरेंट कलर, इफ़ वी गिव बेसिक सॉल्यूशन दे विल शो डिफरेंट कलर. फॉर एग्जांपल वी टेक लिटमस सॉल्यूशन. लिटमस सॉल्यूशन शोज पर्पल कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशंस, रेड कलर in acidic solutions and blue color in basic solutions. So with the help of litmus paper we may know that the substance or mixture given to us is acidic, basic or neutral. Second, phenolphthalein. Phenolphthalein gives colorless in neutral solution and it is colorless in acidic solution and gives pink color in basic solutions. Next example is methyl orange. Methyl orange gives orange color in neutral solutions, red color in acidic solutions and yellow color in basic solutions. Then we have another type of indicators and that are known as olfactory indicators. These are the naturally occurring substances which have different smell in acidic or basic medium are called as olfactory indicators. ये वो इंडिकेटर होते हैं जो हमने पहले इंडिकेटर किए हैं, वो तो अपने कलर से बताएंगे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो अपनी स्मेल से बताते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है. फॉर एग्जांपल देयर ऑनियन, वेनिला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स हैं. इनको यूज़ करके हम डिसाइड कर सकते हैं वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. Their smell can be detected only either in the presence of acid or base. Next topic is physical properties of acids. Firstly, we will study about acids, physical properties and their chemical properties, and then we will talk about base, their physical properties and chemical properties. So first our topic is physical properties of acids. First, these have sour taste. यानी कि sour means खट्टे होते हैं acids. Second, dissolve in water to release H positive ions. When acids are dissolved in water, they release H positive ions. Next, turns blue litmus to red, phenolphthalein in colorless and give red color with methyl orange. Then we will study about chemical properties of acid. First property is when acid react with metal, they gives salt plus hydrogen gas. For example, when Zn reacts with HCl, it will give ZnCl2
zinc chloride plus hydrogen gas. Second chemical properties of acid is metal carbonates or metal hydrogen carbonates when react with acids they give salt plus CO2 plus H2. यानी कि जब किसी भी मेटल के कार्बोनेट्स या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनसे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेंगे, सॉल्ट CO2 plus H2O. Let us take an example. Na2CO3 plus HCl will form NaCl which is a salt, H2O water, CO2 gas. NaHCO3 sodium hydrogen carbonate when react with HCl will produce NaCl salt, H2O water and CO2 gas. Third property is when acid reacts with base they produce salt plus water. This we have done in neutralization reaction also. NaOH plus HCl will form NaCl and H2O. जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एसिड प्लस मेटलिक ऑक्साइड्स विल फॉर्म सॉल्ट प्लस H2O बिकॉज एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक इन नेचर. बेसिक होंगी तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस H2. Let us take an example. CuO plus HCl will form CuCl2 plus H2O. Next topic is physical properties of bases. First property is have generally bitter taste and soapy touch. Bases are soapy touch and have bitter taste. Next is water soluble bases are known as alkalis. जो बेस वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाए उन्हें हम क्या कहेंगे, एल्कलीज. नेक्स्ट, बेसिस डिजोल्व इन वाटर टू रिलीज OH नेगेटिव आयंस. एसिड क्या देते थे, H पॉजिटिव आयंस, लेकिन बेस जब वाटर में डिजोल्व होंगे तो वो क्या देंगे, OH नेगेटिव आयंस. बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, phenolphthalein pink and give yellow color with methyl orange. They do not change the color of methyl orange. ये जो हमने पहले इंडिकेटर्स पढ़े थे ये वही हैं कि रेड लिटमस में बेसिस कैसा कलर देंगे, ब्लू देंगे. अगर फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन हम ले रहे हैं तो उसमें पिंक कलर देंगे और मिथाइल ऑरेंज ले रहे हैं तो या तो उनका कलर चेंज नहीं करेंगे और अगर स्लाइटली चेंज होगा भी कलर तो येलोइश सा कलर होगा बस. नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस. When base react with metals, they produce salt plus H2 means hydrogen gas. For example, NaOH plus Zn will form Na2ZnO2 means sodium zincate plus hydrogen gas. Second property, base plus non-metallic oxides will form salt plus H2O. पहले हमने किया था एसिड प्लस मेटलिक ऑक्साइड. मेटेलिक ऑक्साइड क्योंकि बेसिक थी तो इसलिए एसिड प्लस बेस सॉल्ट बना लिया. यहाँ पर क्या है, ये बेस है. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, सो व्हेन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड H2O वाटर. एग्जाम्पल, NaOH plus CO2 will form Na2CO3 plus H2O. CaOH twice plus SO3 will form CaSO3 plus H2O. Then question arises, what do all acids and bases have in common? एसिड्स और बेस के अंदर क्या चीज कॉमन होती है जो उन दोनों के अंदर होती है? आंसर इज टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयंस इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द एसिड्स एंड बेसिस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. जब भी हम किसी एसिड को या बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या करेंगे, अपने आयंस डिसोशिएट करेंगे. मीन्स एसिड क्या देंगे वाटर में, H पॉजिटिव आयंस, बेस क्या देंगे, OH नेगेटिव आयंस, एंड मूवमेंट ऑफ आयंस कॉजेज इलेक्ट्रिक करंट. मीन्स टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स एंड बेस. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक्टिविटी है 2.8. उसमें दे रखा है हमने दो सॉल्यूशन लिए, हर सॉल्यूशन के अंदर एक में हमने डाल दिया ग्लूकोज एंड अल्कोहल डाला और साथ में हमने कुछ सॉल्यूशंस लिए हैं, एसिडिक सॉल्यूशंस लिए हैं, कुछ बेसिक सॉल्यूशंस लिए हैं.
तो एक्टिविटी में क्या होता है, हमने साथ में एक बल्ब लगा दिया, बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड एंड बेस। जो बल्ब है वो एसिड और बेस के केस में तो ग्लो करेगा, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में ग्लो नहीं करेगा। ऐसा क्यों नहीं करेगा, बल्ब जो है ग्लो क्यों नहीं कर रहा? मैंने अभी ऊपर बताया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस। एसिड्स और बेस अपने आयंस डिसोशिएट करते हैं, जिसकी वजह से करंट करंट होता है, और करंट की वजह से क्या होता है, बल्ब ग्लो करता है। लेकिन ग्लूकोज के अंदर और अल्कोहल के अंदर आयंस डिसोशिएट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या नहीं होती, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती और बल्ब ग्लो नहीं करता। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अगर हम किसी भी एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट, एसिड को डालेंगे तो H पॉजिटिव आयंस रिलीज होंगे, और वाटर को डालेंगे तो OH नेगेटिव आयंस रिलीज होंगे। अब हमारी बुक के अंदर एक एक्टिविटी है 2.9, तो उसके अंदर हमें दे रखा है कि अगर हम ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेंगे तो वो अपना कलर चेंज करेगा या नहीं करेगा, या हम मॉइस्ट लिटमस पेपर लेंगे तो वो कलर चेंज करेगा या नहीं करेगा। तो इस एक्टिविटी का आंसर है, द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर विल रिमेन अनचेंज्ड। ड्राई ब्लू लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन नेक्स्ट पैराग्राफ। द कलर ऑफ मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर विल चेंज टू रेड। लेकिन जो मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर हमने लिया उसका रेड में चेंज हो गया। ये क्यों हो रहा है कि ड्राई का तो चेंज नहीं हो रहा कलर, और मॉइस्ट ले रहे हैं तो कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो हमने वाटर के HCl ले रखा है, HCl के अंदर हाइड्रोजन आयंस मीन्स H पॉजिटिव आयंस तब भी प्रोड्यूस होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के बिना H पॉजिटिव आयंस रिलीज नहीं होंगे। द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अक्कर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जब HCl प्लस वाटर रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयंस H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये अपने अपने ये आयंस को डिसोशिएट करते हैं। जब हम HCl को वाटर में मिक्स करते हैं तो H3O पॉजिटिव आयंस निकलते हैं और Cl नेगेटिव आयंस। तो ये H3O पॉजिटिव आयंस जो निकलते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोजन आयंस भी कहते हैं और हाइड्रोनियम आयंस भी इन्हें ही कहते हैं। यानी कि हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। जो H पॉजिटिव हमारे जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो अलोन यानी कि अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते विदाउट वाटर, यानी कि उन्हें एग्जिस्ट करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। इसीलिए वाटर के प्रेजेंस के बिना HCl हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसीलिए जो क्या था, मॉइस्ट लिटमस पेपर यानी जिसके अंदर वाटर था, वाटर के कंटेंट थे, उसने तो अपना कलर चेंज कर लिया रेड में, लेकिन जो ड्राई था उसका कलर चेंज नहीं हुआ। दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयंस H3O पॉजिटिव। यानी कि हाइड्रोजन आयंस जो निकलते हैं एसिड्स में से H पॉजिटिव, उनको हम H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं और H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वो कैसे वो एग्जिस्ट करेंगे। जब H पॉजिटिव वाटर के साथ मिक्स करके H3O पॉजिटिव बनाता है तभी वो एग्जिस्ट कर पाते हैं। अगर हम यहाँ पर ये वाटर नहीं देंगे तो H पॉजिटिव अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ड्राई ब्लू लिटमस पेपर ने कलर चेंज नहीं किया। So we have seen that acids give H3O positive or H positive ion in water. Let us see what happens when a base is dissolved in water. अगर हम किसी बेस को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो क्या रिजल्ट मिलेंगे। एसिड को डिसॉल्व किया तो H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव आयंस मिले, बेस को डिसॉल्व करेंगे तो OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल NaOH when dissolved in water will form Na positive ions and OH negative ions. KOH will form K positive and OH negative. MgOH twice will form Mg2 positive and 2OH negative. Bases generate hydroxide ions यानी OH नेगेटिव, इनको क्या बोल देते हैं हम, हाइड्रोक्साइड आयंस।
ये हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। जो बेसिस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उन्हें एल्कलीज कहते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। इसके आगे के टॉपिक्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।